Hello students, so today's topic is lattice vibrations. Lattice may be regarded as regular arrangement of atoms in which atoms are joined by elastic spring. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि ये लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स शो किए हुए हैं और ये एटम्स एक दूसरे से इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और एक एटम की मोशन दूसरे एटम की मोशन के साथ कपल है कि जिस तरह से एक इलास्टिक स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस होता है उसी तरह से जब एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं देन दे आल्सो अफेक्ट द मोशन ऑफ इट्स नेबरिंग एटम. So these are the lattice vibrations. Now these atoms may vibrate due to some internal energy or these atoms may vibrate because of any external effect. So if we study about the motion of these atoms or these lattice vibrations because of their internal effect, then they define its specific heat, thermal conductivity, etc. But if we study these vibrations which are associated with the which are due to some external forces, then these lattice vibrations explains about the acoustical and some optical property of any solid material. So lattice vibrations are important concern inside solid state physics, and it explain most important properties of solids. So let's continue these vibrations by considering this lattice vibration in one-dimensional monoatomic lattice. So for considering this one vibration of one dimensional monoatomic lattice, means monoatomic means single atom placed at each lattice point, means same type of atoms having same mass. So before discussing about all this, let's see some physical assumption which is defined in these vibrations of one-dimensional monoatomic lattice. So first is all atoms are arranged in a straight line with constant interatomic spacing A. Clear? Means if we consider these atoms which are arranged like this, then these atoms are connected with a elastic spring and the interatomic spacing is small a. Here means the spacing between these atom is small a. Clear? Now the next assumption is that the atoms are identical having same mass, means all these atoms which are placed at these sides are all identical having same mass. And also we had considered that we had thought like this these atoms as sphere. So solid consists of large number of spheres. Now these interaction between atoms extend up to only its neighboring atom. What does it mean? Means if this atom, if we mark this as a nth atom, then if this atom vibrate, then it is affected by motion of its nearest neighbor. Means it will be affected by n plus 1 atom and n minus 1 atom. Here, so we have take some physical situations such that we could explain vibration of one-dimensional monoatomic lattice. So we had considered that motion of this nth atom it is influenced by n plus 1 and n minus 1 atom. Clear? Now each atom is connected with its neighboring by a spring constant beta. As we know about Hooke's law, what explains it that force is directly proportional to the displacement. And when we remove this proportionality sign, then there is a constant which is the spring force constant, which is beta. So all these atoms are connected with their neighboring atoms by spring constant beta. Now the Hooke's law's force exists between atoms, that is the force on atom is supposed to depend linearly on the extension and contraction the nearest neighbor distance. क्लियर? सो कि हम अगर इस nth एटम पे फोर्स देखें कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये अपने जो नेबरिंग एटम के साथ कनेक्टेड है, अगर ये एक्सटेंड हो रहे हैं मींस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा और कितनी इस डायरेक्शन में ये एटम डिस्प्लेसमेंट करेगा. इसी तरह ये एटम इस डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो डिफाइन करेगा कि इस एटम पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. इसी तरह अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में भी क्या होगा कि अगर ये एटम इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर भी उतना ही अफेक्ट होगा. क्लियर? कि ये बताएगा कि ये अपनी इक्विलिब्रियम साइड से कितना डिस्प्लेस हुआ है और कोरस्पॉन्डिंगली उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा.
सो लैटिस वाइब्रेशंस क्या हैं कि जो एटम्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेस्ट पर नहीं है, इवन अगर टेम्परेचर 0 केल्विन भी है तो ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। और हम किसकी वाइब्रेशंस के लिए स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए। सो इसी तरह अगर हम फोर्स निकालें किस पर, द नेट फोर्स ऑन nth atom is given as suppose if we mark in this string of series of atoms, like this is nth atom, then this nth atom, then force on this nth atom is equals to beta, this is equals to beta x n plus 1 minus x n and minus beta x n minus x n minus 1। क्लियर? मीन्स कि अगर आप इस nth एटम को हम मार्क करें तो ये nth एटम इस n+1 के साथ इन्फ्लुएंस में है और n-1 के साथ। तो अब जितनी ये एटम्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स दिस इज n+1। इफ डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे, दिस इज xn+1 माइनस xn। सिमिलरली कि ये एटम अगर इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है तो कोरस्पॉन्डिंगली कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन्स xn माइनस xn-1। सो नेट फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, अगर हम फोर्स देखें, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वेयर बीटा इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड xn+1 माइनस xn गिव्स द डिस्प्लेसमेंट और से इन्फ्लुएंस on the nth atom because of n+1 atom, and also there is a influence of n-1 atom, and if this n-1 atom डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे हम nth एटम की, दिस इज xn माइनस xn-1। सो दिस एक्सप्लेन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ n-1 एटम ऑन nx एटम। अब नेट फोर्स निकालने के लिए हम इस n+1 से के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, n+1 के इन्फ्लुएंस और n-1 के इन्फ्लुएंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन द nth एटम। सो नेट फोर्स कितना है nth एटम पे, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू बीटा xn+1 प्लस xn-1 माइनस 2xn। क्लियर? सो वेयर बीटा इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू फोर्स के इक्वल है। अगर यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू में अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? और मास इनटू एक्सेलरेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है nth एटम की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, दिस विल बी d2xn ओवर में dt²। क्लियर? सो m d2xn ओवर में dt² इज इक्वल्स टू बीटा xn+1 प्लस xn-1 माइनस 2xn के इक्वल आ जाएगा। सो मार्क दिस एज इक्वेशन 2। सो अब ये जो इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये सोल्यूशन क्या होगा, दिस सोल्यूशन xn इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा t माइनस kna। क्लियर? तो ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज द दिस xn इज इक्वल्स, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? सो यहाँ पर k क्या है, k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 2π/λ के इक्वल है। क्लियर? एंड na इज द रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट ऑफ nth एटम की। हमने कोई भी nth एटम कंसीडर किया है तो उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, na मीन्स nth एटम, एंड a इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्लियर? सो नाउ फर्दर टू सोल्व दिस फॉर द वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, हमने क्या किया कि इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ रहा है, तो अब ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम xn का डबल डेरिवेटिव करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिल रही है फर्दर, मीन्स ये क्या करेगा, ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस xn को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो यहाँ से देखिए कि अगर एक्स एन को डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स एन ओवर में डी टी, सो यहाँ से देखिए कि आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और जब इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आयटा ओमेगा। इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा माइनस ए एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और जब इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे देन इट विल गिव आयटा ओमेगा, एंड आयटा ओमेगा इंटू आयटा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस पार्ट को डबल डेरिवेटिव करेंगे देन ए एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल पार्ट एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट मीन्स we get iota omega into iota omega, so iota into iota is equals to -1 and omega into omega omega square। सो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, सेकेंड इक्वेशन क्या है ये पार्ट है। क्लियर। हमने क्या निकाला इसका डेरिवेटिव निकाला और इस डेरिवेटिव को सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट पार्ट आ गया। इसी तरह अगर हम राइट पार्ट में देखें तो ये क्या है, दिस इज पोजीशन फॉर एक्स एन प्लस वन, दिस इज एन माइनस वन। हमारे पास एक्स एन की वैल्यू है, अगर हम यहाँ एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दें और एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक्स एन प्लस वन भी आ जाएगा और एक्स एन माइनस वन भी आ जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ से कि अगर हम फर्दर यहाँ सब्सटीट्यूट करें एक्स एन की वैल्यू में, एक्स एन क्या है, एक्स एन इज़ दिस टर्म, इस एक्स एन की वैल्यू में अगर हम एन प्लस वन और एन माइनस वन सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास एक्स एन प्लस वन और एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। तो इक्वेशंस क्या हो गई फिफ्थ एंड सिक्स। अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को अगर हम सब्सटीट्यूट करें सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए फर्दर अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन को तो ये हमें क्या देगी। आप देखिए यहाँ से कि हमने क्या किया कि डबल डेरिवेटिव निकाल के और एक्स एन प्लस वन और एक्स एन माइनस वन की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया किसमें, इक्वेशन वन में, विच इज़ दिस इक्वेशन। क्लियर। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव term, then n plus 1 terms, then n minus 1 term, and then negative of 2, this is for xn plus xn term। clear। हमने क्या किया, हमने यहाँ से देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में अगर हम क्या कर दें, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स को सब्सटीट्यूट करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए कि एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी के एन ए और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए और यहाँ से माइनस के ए, इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो ये क्या आ जाएगा, बीटा ए एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये टर्म आ जाएगी। इनटू में एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए की टर्म आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्लस बीटा ए, दिस इज एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए टर्म आ जाएगी और साथ में एक्सपोनेंशियल आयटा के ए टर्म आ जाएगी। क्लियर। तो इसी तरह अगर हम एक्स एन वाली टर्म देखें विच इज़ ट्वाइस ऑफ ए एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस के एन, तो अब ये टर्म आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाली सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर। कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए एंड बीटा एक्सपोनेंशियल प्लस आयटा के ए एंड माइनस टू। क्लियर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली देखिए हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल आयटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए। अगर इस टर्म को हम यहाँ 2 आयटा से डिवाइड और 2 आयटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस विल बी दिस टर्म विल बी, फर्स्ट आप ये देखिए कि यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल आयटा के ए और एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए माइनस 2a। तो इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज ये क्या है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2ab।
यहाँ पर ए की टर्म किसके इक्वल होगी, ए इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा के ए, एंड बी किसके इक्वल होगा, दिस बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आयटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई टू। आई विल रिपीट अगेन कि यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैंसिल करने के बाद हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल आयटा के ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, दिस ए, यहाँ से ए स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंशियल आयटा के ए, तो ए किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा के ए बाई टू माइनस बी किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई टू। क्लियर, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या टर्म है, दिस इज एक्सपोनेंशियल आयटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए माइनस 2। क्लियर, तो सपोज दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। तो यहाँ से ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा के ए बाई 2 एंड बी किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई 2। क्लियर, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल आयटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए एंड माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल आयटा के ए बाई 2 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई 2 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल आयटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए माइनस 2। तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इज सेम एज इक्वेशन दिस। तो इट मीन्स हम ये क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, तो ये किसके इक्वल है, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या है, ए इज एक्सपोनेंशियल आयटा के ए बाई 2 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से देखिए हमारे पास अब क्या टर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल आयटा के ए बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए बाई 2 इट्स होल स्क्वायर। क्लियर, सो अगर इस टर्म को 2 आयटा से डिवाइड इंटू 2 आयटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए ये जो ये टर्म है पर्टिकुलर, दिस टर्म दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा ओवर में 2 आयटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा के इक्वल है। क्लियर, तो अगर इस टर्म को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए फर्दर हमने क्या किया कि इस टर्म में 2 आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने साइन थीटा के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द के ए बाई 2। क्लियर, तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 2 आयटा साइन के ए बाई 2 होल स्क्वायर। क्लियर, तो अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर क्या आएगा, 2 आयटा 4 एंड आयटा स्क्वायर इज -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर के ए बाई 2 और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टर्म क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और एम की टर्म नीचे ले आएँ तो यहाँ से देखिए ये टर्म किसकी इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बीटा ओवर में एम साइन स्क्वायर के ए बाई 2। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रिमूव करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 रूट आ जाएंगे इसके प्लस माइनस 2 बीटा एम अंडर रूट साइन के ए बाई 2। क्लियर, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू फ्रिक्वेंसी की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए तो हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे। इसी के साथ आप फर्दर देखिए कि जब हम इसे प्लॉट करें तो इट मीन्स जो फ्रिक्वेंसी का कर्व है ये फ्रिक्वेंसी किससे रिलेटेड है, दिस इज़ रिलेटेड टू के। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि जिसमें हम बता सकते हैं कि ओमेगा और के में क्या रिलेशनशिप है। तो इट मीन्स दिस इज़ अ डिस्पर्जन रिलेशन। आप इसी के साथ देखिए कि अगर हम इस डिस्पर्जन रिलेशन को प्लॉट करें किसके रिस्पेक्ट में, कि के ऑन एक्स एक्सिस एंड ओमेगा ऑन वाई एक्सिस, तो ये हमें क्या दे देगा, डिस्पर्जन प्लॉट देगा। और ये प्लॉट किस तरह से आएगा, साइन कर्व की तरह से आएगा। और साइन का कर्व किस तरह से होता है, साइन कर्व इज लाइक दिस।
बट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर पॉसिबल। सो हमारे पास प्लॉट किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए। क्लियर। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप यहाँ से देखिए, इसीलिए हमने क्या किया कि इस साइन के ए वैल्यू को हमने मोड में लिख लिया, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स लेंगे बस। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें कि हम ये कंसीडर करें, सी क्या है, सी इज स्टिफनेस एंड रो इज़ द लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर। तो यहाँ से सी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस सी इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्लियर। स्टिफनेस, सो स्टिफनेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में स्ट्रेन। तो यहाँ से फोर्स अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ ओवर में ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन देम। और चेंज इन लेंथ क्या होगा कि जितना इनकी एक्सटेंशन या कंप्रेशन से डिस्प्लेसमेंट होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर चेंज इन लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें एक्स से, देन ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, ए। तो यहाँ से x ओवर में a क्या आ जाएगा, दिस c स्टिफनेस इज ई फोर्स ओवर में स्ट्रेन एंड दिस फोर्स ओवर में स्ट्रेन इज इक्वल्स टू a f ओवर में x। क्लियर। तो यहाँ से देखिए c बाय a इज इक्वल्स टू f ओवर में x, वेयर फोर्स ओवर में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्लियर। Further, this C stiffness is could be written as beta A, and this rho, which is linear mass density, means mass over में A. Clear? तो अगर हम यहाँ से बीटा और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस बीटा इज इक्वल्स टू C by A and rho is equals to M by A। क्लियर। तो बीटा क्या आ जाएगा, C by A एंड M यहाँ से निकालिए, M किसके इक्वल आ जाएगा, रो इंटू में A। क्लियर। सो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ओमेगा की टर्म क्या आ जाएगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 बाई ए सी रो अंडर रूट साइन के ए बाई 2। आई सोल्व इट दिस। देखिए यहाँ से क्या टर्म है, 2 बीटा ओवर में m अंडर रूट साइन के ए बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से 2 c बाई ए इंटू में m की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू में a, सो दिस इज रो इंटू में a अंडर रूट साइन के ए बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले लें, तो ये 2 बाई ए सी ओवर में रो अंडर रूट साइन के ए बाई 2 का मोड आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए अब c बाई रो अंडर रूट, c बाई रो क्या है, c बाई रो अंडर रूट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई ए वी नॉट। वी नॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन लैटिस। क्लियर। अब यहाँ से ये इक्वल रिलेशन क्या शो कर रहा है, दिस इज डिस्पर्जन रिलेशन विच इज़ बिटवीन ओमेगा एंड के। तो अगर इस डिस्पर्जन रिलेशन को हम प्लॉट करें तो ये प्लॉट किस तरह से आएगा, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम किस तरह से ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन वैल्यूज। Here, so this is 0 to plus pi by a and 0 to minus pi by a is first Brillouin zone. This is plus pi by a to 2 plus 2 pi by a is second Brillouin zone, and minus pi by a to minus 2 pi by a is second Brillouin zone. Clear? तो हमने यहाँ तक मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए क्या इवेलुएट कर लिया कि मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए हमने डिस्पर्जन रिलेशन इवेलुएट किया और कोरस्पॉन्डिंगली हमने उसका प्लॉट देखा।